Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestone social science textbook for Class 4, Chapter 19. The name of the chapter is Our Rich Heritage. Clothing. In India, there is a wide variety of clothes worn by people of different states. हमारे यहाँ पर हर स्टेट के लोगों के पहनने के जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं. In earlier times, men mostly wore dhoti kurta, kurta pajama, and lungi shirt. In modern times, however, men wear shirts, trousers, t-shirts, and jeans. पुराने समय में जो मेन हुआ करते थे वो या तो धोती कुर्ता पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे या फिर लुंगी के साथ शर्ट पहनते थे. आज के टाइम पे मेन शर्ट्स पहनते हैं, ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स एंड जीन्स भी पहनते हैं. In some parts of western, central and northern India, men wear achkan, चूड़ीदार और शेरवानी चूड़ीदार. सेंट्रल वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में अचकन के साथ चूड़ीदार या फिर शेरवानी के साथ चूड़ीदार भी मेन पहनते हैं. These outfits are worn by men during weddings and festivals. शादियों में या फिर फेस्टिवल्स के टाइम पर मेन इनको पहनते हैं. Men from Rajasthan, Punjab and Gujarat wear different types of turbans. Turbans का मतलब होता है पगड़ी. तो राजस्थान, पंजाब और गुजरात के लोग अलग अलग तरह की टर्बन्स पहनना पसंद करते हैं. द वुमेन ऑल्सो वेयर अ वैरायटी ऑफ क्लोथ्स. ऐसा नहीं है कि ये जो वैरायटीज़ है सिर्फ मेन के क्लोथ्स में ही है. वुमेन की क्लोथिंग में भी काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ हैं. द साड़ी इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस worn बाय वुमेन थ्रू आउट इंडिया. पूरे इंडिया में साड़ी को एक ट्रेडिशनल ड्रेस माना गया है और सभी लोग इसे पहनते भी हैं. However, the style of wearing it may differ from one region to another. In Gujarat, Maharashtra, and Bengal, salwar kameez has also become a popular dress. The ghagra choli is common in Gujarat, Rajasthan, and Madhya Pradesh. साड़ी तो सब जगह लोग पहनते हैं लेकिन पहनने का तरीका अलग अलग हो सकता है. आजकल तो गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल में सलवार कमीज़ भी फेमस हो चुकी है और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में घाघरा चोली फेमस हो रही है. Then comes architecture. In the olden times, Emperor Ashoka built stupas at Sanchi and Sarnath and many people visit them. किंग अशोका ने सांची स्तूप बनाया, सारनाथ में स्तूपा बनाया है और लोग यहाँ देखने भी जाते हैं. There are a number of temples that were constructed during the olden times. पुराने समय में बहुत अलग अलग वैरायटी के मंदिर भी बनाए गए थे. They are also a part of the monument family. Monument family का ये भी पार्ट बन चुके हैं. The temples are beautifully carved, finely sculpted and look splendid. अब ये जो हमारे टेम्पल्स हैं, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इनकी कार्विंग की हुई होती है, दिखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं. Some of them have unique features such as the well-known Golden Temple in Amritsar, golden in color, and the Gopuram or two towers of the Meenakshi Temple in Tamil Nadu. अब हर एक आर्किटेक्चर अपने में कुछ यूनिक, कुछ अलग भी होता है. जैसे कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल पूरा गोल्डन है कलर में. उसी तरीके से मीनाक्षी टेम्पल है तमिलनाडु में, उसके अंदर 2 टावर्स हैं. The Amarnath Temple, the Venkateshwara Temple, Tirupati, the Kalighat Temple, Kolkata, the Konark Sun Temple, Odisha, the Dilwara Jain Temple, Rajasthan, the Brihadeshwara Temple, Thanjavur, and the Khajuraho Temple, Madhya Pradesh, are visited by a large number of people every year. ये कुछ वो मंदिर हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, फेमस हैं और लोग साल भर यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं. The largest number of temples are in the state of Tamil Nadu. सबसे ज़्यादा मंदिर तमिलनाडु के अंदर हैं. The Mughals brought their own style of architecture in India, which had domes and minarets like in Humayun's tomb, Red Fort and Jama Masjid.
मुगल्स का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इंडिया से थोड़ा सा अलग था। ये लोग डोम बनाते थे, इस तरीके का बनाते थे ऊपर से। तो ऐसा हुमायूं टोम में भी है, रेड फोर्ट में भी है, जामा मस्जिद में भी है। The Dutch, the Portuguese, the French, and the British came to India to trade. They also contributed to the art of building by introducing their own style of architecture. और ब्रिटिशर्स ही नहीं, जब बल्कि डच और पोर्चुगीज़, फ्रेंच, ये सब भी इंडिया में आए। इन्होंने भी हमारे यहाँ में आर्ट्स को कंट्रीब्यूट किया है, बिल्डिंग्स बनाई है अपने तरीके से। दिस इज़ एविडेंट इन द विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, the churches and the old houses in Goa and Puducherry, the Parliament House and the Rashtrapati Bhavan in New Delhi. ये सब वो आर्किटेक्चर का फॉर्म है जो इंडिया का नहीं है, बाहर से दूसरी कंट्री से लोग आए हैं और अपने साथ ये वहाँ का जो एक कल्चर है वो लेकर आए हैं। डांस एंड म्यूज़िक, देयर आर बेसिकली टू मेन काइंड्स ऑफ डांस फॉर्म्स एंड म्यूज़िक इन इंडिया, फोक एंड क्लासिकल। दो तरीके के डांस फॉर्म्स हैं इंडिया में, एक है हमारा फोक एंड नंबर 2 इज़ योर क्लासिकल। सम क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया आर भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम, कथकली एंड मोहिनीअट्टम केरला। ये कुछ क्लासिकल डांस फॉर्म्स के टाइप्स हैं। In the earlier times, dancers performed in temples and in the courts of the kings. पहले के टाइम में जो डांसर्स होती थी वो या तो मंदिरों में अपना डांस परफॉर्म करती थी या फिर राजाओं के सामने कोर्ट्स में परफॉर्म करती थी। Today, classical forms of dance are appreciated by people all over the world. आज के टाइम में क्लासिकल म्यूज़िक को, क्लासिकल डांस को पूरी दुनिया के लोग अप्रिशिएट करते हैं। Some well-known folk dances are भांगड़ा and गिद्दा पंजाब में, घूमर राजस्थान, डांडिया एंड गरबा गुजरात, लावणी महाराष्ट्र, बिहू असम, दुम्हल जम्मू एंड कश्मीर, हिकट हिमाचल प्रदेश, धाम्यल और धूप हरियाणा, छो उड़ीसा एंड छोलिया उत्तराखंड। ये कुछ डांस फॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग जगह के फेमस हैं। Folk dances are performed to express joy and happiness during weddings, festivals and during harvesting of crops. अब ये जो folk dances हैं, जब लोग खुश होते हैं तब ये परफॉर्म किए जाते हैं, शादियों में, फेस्टिवल्स में, या फिर जब हम क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं उस टाइम पे। Indians have always been very fond of music and dance. इंडियंस हमेशा म्यूज़िक और डांस को बहुत पसंद किया है इन्होंने। द टू स्टाइल ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया आर हिंदुस्तानी, डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड कर्नाटिक, डेवलप्ड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बोथ स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ राग एंड तला। हिंदुस्तान में दो तरह के म्यूज़िक्स हैं, एक को हिंदुस्तानी बोला जाता है, ये हमारे पूरे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ये वाला म्यूज़िक होता है। दूसरा है कर्नाटिक, ये साउथ वाले पार्ट का म्यूज़िक है। दोनों में राग और तला इंक्लूडेड है। सम टाइप्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक आर ठुमरी, ख्याल, तप्पा, गज़ल एंड ध्रुपदा। ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक के टाइप्स हैं। कुछ सिंगर्स भी हैं जैसे कि तानसेन, बैजू बैरवा एंड हरिदास were some famous singers of हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ये वो सिंगर्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक को एक पहचान दी थी। तानसेन was the court singer in Emperor Akbar's court. He composed rags like राग दीपक। एम्परर अकबर के कोर्ट में एक सिंगर थे जिनका नाम है तानसेन। इन्होंने एक राग बनाया था राग दीपक। जब ये राग बहुत तेज़ गाते थे तो अपने आप दीपक जल जाते थे। भक्ति एंड डिवोशन आर द इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक। कर्नाटिक म्यूज़िक बेसिकली भजन और भक्ति के लिए फेमस है। सम फेमस कर्नाटिक म्यूजिशियंस आर त्यागराजा, दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री। ये कुछ कर्नाटिक म्यूजिशियंस के नाम हैं। रॉक मार्वल्स, द अजंता एंड एलोरा caves in Aurangabad are rock cut caves which are world famous tourist spots.
अब यहाँ पर रॉक यानी कि पत्थरों को काट कर गुफाएँ बनाई गई है और यहाँ पर भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ विज़िट करते हैं, इसे देखने के लिए आते हैं। इन अजंता 99 किलोमीटर्स फ्रॉम औरंगाबाद देर आर 30 केव्स। केव्स यानी कि गुफाएँ। अजंता में 30 केव्स हैं, ईच कार्व्ड इन द हिल। और हर एक जो केव है वो हिल्स के अंदर कार्व की गई है, बनाई गई है। These caves have beautiful paintings that depict the life of Buddha. इन केव्स के अंदर बहुत सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स हैं जो कि बुद्धा के लाइफ पर डेडिकेटेड हैं। The detailed carvings on the walls, pillars and entrances are hundreds of years old. दीवारों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर या फिर जो एंट्रेंस गेट है वहाँ पर जो कार्विंग करी गई है, जो ड्राइंग बनाई गई है वो करीबन 100 साल पुरानी है या फिर बहुत सारे साल पुरानी है। Inside the caves, there are prayer halls and monasteries where the Buddhist monks lived. अब यहाँ पर इन केव्स के अंदर प्रेयर हॉल्स हैं, जो बुद्धिस्ट के पंडित यानी कि मॉन्क्स हुआ करते थे, वो यहाँ पर रहते थे और पूजा करते थे। The Ellora caves are situated 26 kilometers north of औरंगाबाद। औरंगाबाद से जब आप 26 किलोमीटर्स नॉर्थ में जाएंगे तब आपको मिलेगी अलोरा केव्स। There are 34 caves with Jain and Hindu temples. यहाँ पर टोटल 34 गुफाएं यानी कि केव्स हैं जिसके अंदर जैन और हिंदूज के टेम्पल्स हैं। They tell us about the kind of clothes, jewelry and lifestyle of people at that time. यहाँ पर ये जो केव्स हैं इनके अंदर की ड्राइंग्स हमें उस टाइम के लोगों के कपड़ों के बारे में नॉलेज देती है, ज्वेलरी के बारे में नॉलेज देती है और उनका डे टू डे किस तरीके से लाइफस्टाइल रहता था, कैसे वो लोग रहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इन केव्स के अंदर की पेंटिंग से पता लग जाती हैं। आर्ट। अपार्ट फ्रॉम द पेंटिंग्स इनसाइड द केव्स देयर आर मैनी मिनिएचर पेंटिंग्स विच वर डन फॉर बुक्स एंड एल्बम्स ऑन पेरिशेबल मटीरियल लाइक पेपर और क्लॉथ। बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स भी बनाई गई थी जो कि पेपर पे या फिर क्लॉथ पे बनाई गई थी। ये पेरिशेबल मटेरियल है। पेरिशेबल मटेरियल यानी कि जो ख़राब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। द पालाज ऑफ बंगाल स्टार्टेड मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडिया। मिनिएचर का मतलब छोटा फॉर्म, किसी भी बड़ी चीज़ का बहुत छोटा फॉर्म मिनिएचर होता है। तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं हमारे यहाँ पर ये पालाज ऑफ बंगाल ने स्टार्ट किया था, फॉलोड बाय द मुगल्स एंड द राजपूत्स। बाद में मुगल्स ने इसको फॉलो करा, फिर राजपूत्स ने फॉलो करा। दीज पेंटिंग्स शो बैटल सीन्स, स्टोरीज फ्रॉम रिलीजियस बुक्स, हंटिंग सीन्स, कोर्ट लाइफ एंड सो ऑन। ये पेंटिंग्स हमें पुरानी लड़ाइयों के बारे वहाँ के जो सीन्स होते थे लड़ाई के वो बताते हैं, या फिर कोई रिलीजियस बुक होती थी, धर्म वाली बुक्स होती हैं, उनके अंदर की कोई स्टोरी होती है, या फिर कोई हंटिंग सीन बता दिया जाता था इन पेंटिंग्स के द्वारा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर फेस्टिवल्स। देयर आर अ वेराइटी ऑफ फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा, क्रिसमस, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, गुरुपूरब एंड मैनी मोर। बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। Some of the harvest festivals that are celebrated include Baisakhi in Punjab, Onam in Kerala, Bihu in Assam and Pongal in Tamil Nadu. हार्वेस्ट फेस्टिवल जिस टाइम पर आप क्रॉप्स को काटते हैं उस टाइम पर ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें बैसाखी आता है, पंजाब में सेलिब्रेट होता है, ओणम केरला में सेलिब्रेट होता है, बिहू असम में सेलिब्रेट होता है और पोंगल तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। India is a unique country. We celebrate festivals to welcome the seasons, the harvest, the rain or the full moon. इंडिया एक ऐसी यूनिक कंट्री है, यहाँ पर हम लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, कुछ सीजन्स को वेलकम करने के लिए, हार्वेस्ट के लिए, रेन के लिए या फिर फुल मून के लिए। A number of festivals are common to most parts of India. However, they may be named and celebrated differently. Vibrant colors, music and festivity keep the country alive. बहुत से ऐसे भी फेस्टिवल्स हैं
जो हम बहुत सारे पार्ट्स में, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में सेलिब्रेट भी करते हैं। और ये फेस्टिवल्स इतने ज़्यादा कलर्स के साथ मनाए जाते हैं, म्यूज़िक के साथ मनाए जाते हैं, जिससे कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग अलाइव रहते हैं, ऐसा लगता है उनको वो ज़िंदा है। और यही तो है हमारी डे टू डे लाइफ से, ये फेस्टिवल्स ही तो हैं जो हमें थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस दे देते हैं। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, वेयर न्यू क्लोथ्स, एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स एंड सेलिब्रेट टुगेदर। लोग अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, गिफ्ट्स और मिठाइयाँ एक्सचेंज करते हैं, और सभी साथ में मिलके ये फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt in the chapter, Our Rich Heritage, you can always write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.